समृद्धि समृद्धि स्वरूप। यस सर। बेटा कहाँ तक पहुंचे थे लास्ट क्लास में? हम तो एक सप्ताह से नहीं लिए ना। मंडे मंडे वेडनेसडे चल गया, फ्राइडे भी हो गया आज। आई थिंक वी वर डिस्कसिंग अबाउट कंप्यूटर वायरसेस, इजंट इट? यस सर। So did we did I think we had did the types of viruses in that boot sector virus, program file virus, सर ये दो। गेटर तक कर लिए थे, कंप्यूटर वॉर्म स्टार्ट करना था। अच्छा, कंप्यूटर वर्म स्टार्ट करना था। Okay, we will start then. Do you need any revision of the previous things we had discussed? Because it's a long time, almost a week. So I think you may had forgot. Is it necessary to revise the things? Yes, a little bit. Okay. In a very short time, in precisely, I will explain everything back. Okay. Okay. Okay then. So let's start the class, and in that we have to discuss now about the virus. So let us revise what is virus. So by the time, guys, please, I had not restricted you from unmuting yourself, but don't unmute. If you have real doubt, you have a question, you unmute and talk. Prince, शुरू हो गया तुम, है ना? बोले कि नहीं कि अनम्यूट मना नहीं है, तो शुरू कर दिया। कान पकड़ के बाहर कर देंगे क्लास का। Okay, so let's talk about the virus. Now, what is a virus? Virus is a malicious code. A virus actually is malicious programming code that disturbs the normal processing or normal working of a computer system. Viruses are also capable of stealing vital information, vital personal information. Full forms of virus: vital information resources under seize. Full form of virus is vital information resources under seize. Then comes type of virus. Type of virus, depending upon the type of damage they performs, viruses are mainly categorized into three. There are mainly three categories. Number one is boot sector virus. Ashutosh, Sudharja. Boot sector virus. Now, what is boot sector virus? Is the virus that damages the boot sector of the computer system. Now, what is boot and what is boot sector? Boot means the process of starting up your computer. Boot का मतलब the process that helps your computer to start up and creates a platform between the user and the hardware. Okay, now boot sector. So when the computer is working or creating a platform between the user and the hardware, it needs a certain number of codes, certain number of instructions. Those instructions are stored in a particular area of the disk. Those instructions are stored in particular area of the disk. In Windows, it is the starting point of the disk. विंडोज में क्या होता है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस है डिस्क के शुरुआत में रखा जाता है, जबकि लाइनक्स में क्या है, वो लास्ट में रखा जाता है। तो दोनों का अलग अलग सिस्टम है, और जिसके चलते क्या होता है, विंडोज और लाइनक्स एक साथ में एक कंप्यूटर में रखना मुश्किल है। किस लिए? अभी अभी पता चला। विंडोज अपना बूटिंग इंस्ट्रक्शंस बिगिनिंग ऑफ द फाइल डिस्क रखता है, लाइनक्स अपना बूटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड ऑफ डिस्क रखता है। तो दोनों तो दो एंड पे रखता है, और दोनों जब तक एक जगह पे नहीं आएगा तब तक कैसे एक साथ में दोनों स्टार्ट हो सकता है, या दोनों एक साथ में कैसे
इंटरेक्शन करेगा। तो ये प्रॉब्लम के चलते क्या होता है कि लाइनक्स और विंडोज दोनों को एक साथ में स्टार्ट करना या एक ही डिवाइस में दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत मुश्किल से होता है। नहीं होता ऐसी बात नहीं है, होती तो है, हम लोग करते भी है और कई बार हम लोग किए भी है, बट इट इज डिफिकल्ट। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस दैट द पोर्शन ना रे, ये दो चार ठोको तो बाहर का। अब की बार जिसका भी फोटो मेरे स्क्रीन पे दिखा वो गया बाहर, whoever it is, keep your hands away from the phone. You need to listen only, not to touch. You are not interacting with me now. जिसका भी आया नाम हम अब की बार गया, whether you make noise or don't make noise. Now जो बात कर रहे थे कि बूटिंग इंस्ट्रक्शंस। अब बूटिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होता है कि हार्ड डिस्क का किसी एक पर्टिकुलर जगह पे होता है, उस जगह को बोला जाता है बूट सेक्टर। और बूट सेक्टर वायरस क्या करता है, इट डैमेजेस दैट पर्टिकुलर एरिया और इट चेंजेस दैट पर्टिकुलर एरिया। वो पर्टिकुलर एरिया को क्या करता है, डैमेज कर देता है, इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर देता है। एंड वंस द इंस्ट्रक्शंस आर चेंज्ड, obviously you can understand the computer will not start up, कंप्यूटर शुरू ही नहीं होगा। अब जब शुरू नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे, है ना। सेकेंड वन, that is program file virus or yes, it is program file virus. Now program file virus are the virus that gets attached to the program files. Now what are program files? We used to perform a lot of operations, lot of things on the computer. कंप्यूटर में बहुत सारा काम करते हैं, तो बहुत सारा काम करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो प्रोग्राम्स है, ये इस प्रोग्राम के साथ क्या होता है कि वायरस चिपक जाता है। अब जब जब उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तब तक वायरस अपने आप को भी एग्जीक्यूट करता है। नाउ व्हाट हैपेंस इफ दे एग्जीक्यूट्स, अगर प्रोग्राम फाइल के साथ चिपक भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। वो क्या करेगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने नहीं देगा, खुद एग्जीक्यूट होगा। और साथ ही साथ क्या करता है, जैसे ही प्रोग्राम फाइल वायरस जैसे ही एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, वो अपना ही कॉपी बनाता है, मींस इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड देन इट the replicated copies they goes and attach to other program files. प्रोग्राम फाइल वायरस जब पहली बार घुसा तो एक ही फाइल के साथ जुड़ा, और जुड़ने के बाद वो कुछ करने वाला था नहीं, मगर क्या हुआ, जैसे ही उस प्रोग्राम को हम लोग चलाए, वो क्या करेगा, अपना कॉपी बनाना शुरू करेगा और हर कॉपी जा करके हर एक प्रोग्राम फाइल के साथ जुड़ जाएगा। अब जो सारा प्रोग्राम फाइल के साथ जुड़ गया, अब जैसे ही सारा प्रोग्राम फाइल के साथ जुड़ गया तो जितना भी हम लोग प्रोग्राम चलाएंगे सबके सब क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा, सारे प्रोग्राम्स इन्फेक्टेड होगा, कंप्यूटर स्लो चलेगा, प्रोग्राम्स दे विल परफॉर्म मल फंक्शनिंग, मतलब करना कुछ और था, होगा कुछ और। ओके, थर्ड वन, मैक्रो वायरस, that is third one is multi-parted virus. Multi-parted virus क्या है, दोनों है, ये प्रोग्राम फाइल वायरस भी है और बूट सेक्टर वायरस भी है, दोनों का मिक्सचर है मल्टी-पार्टेड वायरस। दोनों को डैमेज कर सकता है, बहुत सारे दूसरे काम भी कर सकता है ना। सिर्फ प्रोग्राम फाइल को डैमेज करना ही नहीं या बूट सेक्टर को डैमेज करना नहीं, या दूसरे कुछ भी काम कर सकता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है मल्टी पार्टेड। फोर्थ वन, दैट इज मैक्रो वायरस। नाउ व्हाट इज मैक्रो इज टू परफॉर्म ए सीरीज ऑफ टास्क, टू परफॉर्म ए सीरीज ऑफ टास्क to complete one particular or to achieve one particular goal,
वी यूज टू जनरली हम लोग ये करते हैं। जैसे हम लोग को कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप, सिलेक्ट द टेक्स्ट। सेकंड स्टेप, go to format, then click on text, then go to color, choose the color, apply, okay। तो ये जो 5-6 स्टेप्स है, इसको बार बार करना हम लोग के लिए क्या होता है कि हम लोग को बहुत बोरिंग लगता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस स्टेप्स अगेन एंड अगेन, वी कैन क्रिएट अ की कॉम्बिनेशन। हम लोग एक की कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि वो 2 की या 3 की को एक साथ में दबाएंगे, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। ये काम हम लोग कर सकते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग और द की कॉम्बिनेशन टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड मैक्रो। इसी को बोला गया है मैक्रो। नाउ व्हाट आर ऑल द एप्लीकेशंस डू नॉट सपोर्ट मैक्रो। सारे एप्लीकेशंस मैक्रो सपोर्ट नहीं करता है। जो एप्लीकेशंस मैक्रो सपोर्ट करता है, जो सॉफ्टवेयर मैक्रो सपोर्ट करता है, सिर्फ उसी में मैक्रो वायरस लग सकता है। जिस एप्लीकेशन में मैक्रो सपोर्ट करती है, सिर्फ वही एप्लीकेशन में मैक्रो वायरस लग सकता है। मैक्रो सपोर्ट करने वाला कुछ एप्लीकेशंस है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सब में मैक्रो सपोर्ट है। जबकि पेंट में मैक्रो सपोर्ट। नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस गाय आउट, माही कश्यप। I'm going to put you out. Oh, sorry. I put Gaurav Kumar, Mahi Kashyap. Go to waiting room. YouTube. Okay. Now, जो बोले थे क्या कि मैक्रो वायरस जो है वर्ड में सपोर्ट करता है, एक्सेल में सपोर्ट करता है, पावर पॉइंट में सपोर्ट करता है। तो जो ये सारे एप्लीकेशंस में जैसे सपोर्ट करता है, तो ये सारे एप्लीकेशंस में क्या होता है कि मैक्रो वायरस लग भी सकता है। अब लगता कैसे है माइक्रो वायरस, लगता कैसे होगा? समवन सेंट यू ऑफ अटैचमेंट, कोई तुमको एक अटैचमेंट भेजा है, एक MS वर्ड का फाइल भेजा है। हम लोग क्या करते हैं, बिना कुछ देखे उसको डबल क्लिक करके खोल लेते हैं, और जैसे ही खोले, जैसे ही वो पर्टिकुलर फाइल को खोले बिना वायरस स्कैन किए, तो क्या होगा, वो एक मैक्रो को क्या करेगा, हम लोग के कंप्यूटर के अंदर घुसा देगा। नाउ दिस फाइल, द मैक्रोस, as soon as we had opened that particular file, it starts creating the replicated copies. अब क्या करता है, वो अपना कॉपी बनाना शुरू कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, हर एक मैक्रो जा करके जो एप्लीकेशन वाला मैक्रो सपोर्ट करता है, उसमें जितने भी फाइल्स हम लोग बनाए थे, सबके साथ जा करके चिपक जाता है। अब क्या हुआ, मेरे कंप्यूटर में जितने भी MS वर्ड फाइल था, जितने भी एक्सेल फाइल था, जितने भी पावर पॉइंट का फाइल था, सब में क्या हुआ, मैक्रो चिपक गया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, if there is macro means it will perform something, कुछ ना कुछ तो काम करेगा। तो वो क्या करेगा, अपना ही काम करेगा और दूसरा कोई काम करने देगा नहीं। ओके, यस अंकित, I had seen you had raised your hand, and this part we had discussed previously. Yeah. सर जैसे अगर मतलब मैक्रो वायरस जो होता है, अगर एक को इफेक्ट करता है तो वो सब को लेके ही जाता है, मतलब वो सब पे क्यों मतलब बढ़ जाता है? हाँ, यही तो वायरस का काम है। वायरस का काम तो यही है कि वो एक के साथ चिपका तो क्या करेगा, अपना कॉपी बनाएगा, बाकी सबके साथ चिपकेगा और क्या करेगा, कंप्यूटर को काम करने नहीं देगा। वायरस का काम ही तो ये है। वो थोड़ी सर्दी खांसी ला सकता है, कंप्यूटर को सर्दी खांसी थोड़ी होगा, नहीं ना होगा। तो वो क्या करेगा, अपना काम करना बंद कर देगा या सही ढंग से काम नहीं करेगा। यही काम ही है वायरस का। नाउ कम्स वायरस सिम्टम्स।
वायरस का सिम्टम्स क्या क्या है, शायद ये सब हम लोग कर चुके थे, फिर भी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. कंप्यूटर स्टार्ट्स डूइंग थिंग्स ऑन इट्स ओन. कंप्यूटर अपने आप कुछ करना चालू कर देता है, फर्स्ट सिम्टम. सेकंड, कंप्यूटर में शट डाउन एंड रिस्टार्ट फ्रिक्वेंटली. कंप्यूटर खुद ब खुद शट डाउन रिस्टार्ट हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा ही, मगर हो सकता है. नंबर 3, malfunctioning may be noticed in several applications. बहुत सारे सॉफ्टवेयर में या बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम लोग को क्या होगा, कुछ गलत करते हुए नजर आ सकता है, जो हम लोग करना नहीं चाहते हैं मगर वो खुद ब खुद हो जा रहा है, ऐसे नजर आ सकता है. सर्टेन ड्राइव्स ऑफ द कंप्यूटर बिकम इनएक्सेसिबल. कंप्यूटर में जो हम लोग का हार्ड डिस्क पार्टीशंस है, मतलब जो अलग अलग जगह हम लोग बनाए हुए थे हार्ड डिस्क में, उसमें से कुछ अचानक से एक्सेस होना बंद हो जाएगा, हो सकता है. नंबर 5, सर्टेन, जो नंबर 5 हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड एरर मैसेजेस पॉप्स अप. एरर मैसेज, जो हम लोग कभी काम कर नहीं रहे थे उसी से रिलेटेड कोई एरर मैसेज तब से आ जाता है, बीच में आता है ना. नाउ नेक्स्ट इज मेनूज एंड डायलॉग्स मे अपीयर डिस्टॉर्टेड. मेनूज और डायलॉग बॉक्सेस का क्या होगा, जैसे पहले आता था पिक्चर वगैरह, वैसे नहीं आकर के कुछ अलग आ सकता है. वो थोड़ा सा फटा फटा सा नजर आ सकता है, थोड़ा गड़बड़ नजर आ सकता है. लास्ट वन, स्पीड ऑफ द कंप्यूटर ड्रॉप्स. वायरस लगेगा, स्पीड ऑफ कंप्यूटर गिरेगा. नाउ वायरस, स्प्रेड ऑफ वायरस. वायरस फैलता कैसे है, रिमूवेबल डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी चिप्स, ये सब जो है, ये सबसे ज्यादा वायरस फैलता है. हम लोग क्या करते हैं, कोई अपना पेन ड्राइव कोई मांगा, अच्छा ठीक है ले जाना, कल दे देना. हमको पता है मेरे कंप्यूटर में वायरस नहीं है क्योंकि हमने एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखे हुए हैं. अब जो ले गया वो क्या किया, पेन ड्राइव लगाया और उसके लैपटॉप में या पीसी में पहले से वायरस था. वायरस क्या करेगा, खुद ब खुद पेन ड्राइव में आ जाएगा. अब दूसरा दिन जब वही पेन ड्राइव हम अपने कंप्यूटर में लगाएंगे तो वो पेन ड्राइव से अब मेरे कंप्यूटर में भी चल जाएगा. एंटीवायरस लगा हुआ था, मगर क्या करते हैं हम लोग, एंटीवायरस से स्कैन तो करते नहीं है, लगाते हैं बस चालू हो जाते हैं सीधे हड़बड़ा के, और जैसे ही हड़बड़ाते हैं गड़बड़ हो जाता है ना. तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ वायरस. वायरस स्प्रेड होने का सबसे बड़ा सोर्स है रिमूवेबल डिवाइसेस. रिमूवेबल डिवाइसेस सबसे ज्यादा वायरस स्प्रेड होता है. ठीक है. नेक्स्ट, फ्रॉम इंटरनेट. यस अभिनव. अभिनव सर कंप्यूटर में सर कंप्यूटर में एक बार एंटीवायरस डलवा देंगे तो सर वो कितना दिन तक चलता है? दैट डिपेंड्स कब तक का तुम कितना का सब्सक्रिप्शन लेगा, कितना पेमेंट किया, उस पर डिपेंड करता है. अलग अलग एंटीवायरस का अलग अलग वैलिडिटी है. कोई 1 महीने का है, कोई 2 महीने का है, कोई 6 महीने का है, कोई साल भर का है, कोई लाइफ टाइम का है. तो वो तुम पे डिपेंडेंट है कि तुम किस टाइप का सब्सक्रिप्शन लिए हो, उस पर डिपेंडेंट है. ओके. नाउ लेट्स नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट इज फ्रॉम इंटरनेट. Nowadays, without internet, we cannot stay a single second, except when we are Zing. जब जी आता है नाक के सामने से, जी देखते हो ना, आजकल कार्टून वगैरह में लिखता है जेड 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 जेड, मतलब सो रहा होता है. Except though we are sleeping, we cannot stay without internet. 1 सेकंड के लिए भी इंटरनेट कटता है तो दिमाग जो है गर्म हो जाता है.
इंटरनेट नहीं है, देखो किस जमाने में हम लोग रहते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इंटरनेट इज स्प्रेडिंग अबाउट 20% एवरी डे। इंटरनेट का स्प्रेड का स्पीड 20% एवरी डे, हर दिन 20% के रेट से बढ़ रहा है एवरी डे। साल में नहीं, महीने में नहीं, हफ्ता में भी नहीं, पर डे। जब हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो आज अगर 10 लाख वेबसाइट है तो कल जो कितना हो जाएगा 12 लाख, परसों कितना हो जाएगा 14 लाख 20,000। So in this way the internet is spreading every day. Now, obviously, if the internet has this much reach to every person, every home, every human being, आजकल तो शायद जानवर भी इंटरनेट शुरू कर दिया होगा, सिर्फ डिवाइस बनाने नहीं आना है तो वो लोग भी जो है ना इंटरनेट यूज कर रहा होता, तो वायरस तो वहां से फैलेगा ही, नेचुरल सी बात है। नाउ नेक्स्ट, थ्रू ईमेल्स, ईमेल्स के थ्रू क्या करते हैं, जो हम एग्जांपल दे रहे थे बार बार कि हम लोग ईमेल आता है तो क्या करते हैं, किससे आया, कहाँ से आया, कुछ देखते नहीं है, बस खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, कोई कभी कभी लिंक पे क्लिक कर देते हैं या कोई अटैचमेंट ओपन कर देते हैं, तो क्या होता है कि वहां से भी वायरस अंदर आ सकता है। और जनरल तौर पे जो वायरस मेल अटैचमेंट के साथ आता है वो बेसिकली दो तरीके का आ रहा है, या बेसिकली दो ही बोलेंगे हम दो ही बोलेंगे। उसका मेन टारगेट क्या होता है, तुमसे चीटिंग करना, तुम्हारा पैसा हड़पना, मेन टारगेट। ईमेल के थ्रू जो भी वायरस या मैलवेयर्स अंदर आता है वो बेसिकली उसका एक ही टारगेट होता है कि तुमसे चीटिंग करना। वो तुम्हारा कंप्यूटर को डैमेज करना नहीं चाहता, कंप्यूटर को डैमेज करके क्या करेगा। ओके, नाउ कम्स malware. What is malware? Malware something that disturbs the normal functioning of the computer system. Malware. नाम में दो वर्ड है, malicious सॉफ्टवेयर। malicious मतलब जो कुछ गलत काम करता है उसी को हम लोग बोलते हैं malicious। जैसे बच्चा बदमाश है तो क्या बोलते हैं, notorious बोलते हैं ना, उसी तरह से यहाँ से आया malicious, mal functioning softwares, malicious softwares। ना malicious softwares क्या करता है, ये बहुत सारा काम कर सकता है, बहुत सारा। क्या क्या, सबसे पहला काम जो कर सकता है वो है क्या, तुम्हारा इंफॉर्मेशन दूसरे किसी को बेच सकता है तुम्हारे साथ चीटिंग करने के उद्देश्य से। और दूसरा, कुछ ऐसा चीज छोड़ जाए तुम्हारे कंप्यूटर में जो कि तुमको बाद में परेशान करे। तो दो टाइप का जो है, पहला वाला है बैंकॉस। बैंकॉस क्या करता है, ये आ करके चुपचाप क्या करता है, बैठे रहता है, कुछ नहीं करता। ये वायरस है नहीं, वो वायरस नहीं है, वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, आ करके चुपचाप सोए रहेगा और तुम्हारे स्क्रीन पे नजर रखते रहेगा, इंटरनेट एक्टिविटी पे, ठीक है, एकदम आंख लगा के ऐसे गड़ा के देखते रहेगा इंटरनेट पे क्या कर रहे हो। बैंक का वेबसाइट खुला, डाल बेटा पासवर्ड डाल, ऐसे करके देखेगा। तो क्या करेगा, जैसे ही आईडी पासवर्ड हम लोग डालेंगे बैंक के वेबसाइट पे, वो क्या करेगा, फट से उसको चुरा लेगा।
चुरा के क्या करेगा, दूसरे किसी को भेज देगा। तो क्या होगा, जो दूसरे को भेजेगा वो तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा निकालेगा, तुम्हारे साथ धोखाधड़ी होगा। बैंक को उसका काम ये है। दूसरा है गैटर। गैटर क्या करता है, ये भी इंटरनेट पे नजर डाल के बैठे रहता है। अच्छा बेटा, तेरे को जो है ना मोबाइल फोन का बड़ा शौक है, तुम हर दिन मोबाइल फोन देखते हो, रुको मोबाइल फोन दिखाते हैं। वो क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट देता है। तुम्हारे सामने क्या करेगा, मोबाइल फोन का एड, अलग अलग कंपनी का मोबाइल फोन का एड देगा। एड से पैसा कमाता है। वो जो है तुमसे चीटिंग नहीं कर रहा है, मगर तुमको ऐड दिखा के वो किसी दूसरे का पॉकेट भर रहा है। समझ में आया? तो दिस वे दैट इज द फंक्शन ऑफ गैटर। नाउ कम्स कंप्यूटर वॉर्म्स। तो रिवीजन हम करवा दिए पूरे का। नाउ व्हाट इज वॉर्म्स? वॉर्म्स आर द प्रोग्राम्स दैट replicates itself and tries to flow through the network। फिर से रिवाइज करवा देते हैं। worms are the programs that replicates themselves and flows through your network or travels through your network। अभी नेटवर्क क्या है? अब तुमको क्या प्रॉब्लम हो गया आयुषी वर्मा? ओके, तो क्या तुम्हारा नेटवर्क, नेटवर्क क्या है? इंटरनेट यूज कर रहे हैं, या तो फिर कंप्यूटर, 2-3 कंप्यूटर है तो नेटवर्क लगाए हुए हैं, लैन। तो वर्म्स क्या करेगा, अपना कॉपी बनाएगा और वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली तुम्हारे नेटवर्क के थ्रू उसको बाहर भेजते रहेगा। कहीं जाए या ना जाए कोई मतलब नहीं, वो कहीं पे पहुंच रहा है उससे कोई मतलब नहीं। वो क्या करेगा, सिर्फ अपने आप को तुम्हारे नेटवर्क के थ्रू भेजना शुरू करेगा। अब नेटवर्क मतलब क्या, गेट है ना, अंदर और बाहर जाने का रास्ता है ना वो नेटवर्क। अब अगर वहां पे सिर्फ वर्म्स चलेगा तो तुम्हारा डेटा कहाँ से जाएगा, या तुम्हारे पास डेटा कहाँ से आएगा? आने का रास्ता ही नहीं है, बंद हो जाता है। तो क्या होता है कि इंटरनेट स्पीड रैपिडली घट जाता है, बड़े तेजी से इंटरनेट का स्पीड घटता है। और हम लोग क्या सोचते हैं, मेरा इंटरनेट तो बहुत खराब है, पता नहीं चलता ही नहीं है। यही सेम जियो का नेटवर्क उसका बढ़िया चलता है, मेरा शायद मोबाइल ही खराब है। नहीं, एक्चुअली तुम्हारे सिस्टम में वर्म्स हो सकता है। डिवाइस, नो डाउट द डिवाइस में कुछ तो मायने रखता है, कुछ तो मायने रखता है। डिवाइस भी जो है थक जाता है, ओवरलोड हो जाता है, चोक होता है। इसीलिए एटलीस्ट इन 124 आवर्स में एक बार क्या करना चाहिए, हम लोग का मोडेम को बंद करना चाहिए, हम लोग का मोबाइल फोन को एक बार स्विच ऑफ करना चाहिए। 24 घंटा में एक बार करना चाहिए, मगर हम लोग नहीं करते हैं। और 24 घंटा में 3-4 बार स्विच ऑफ होता है तो फिर सिक्योरिटी वाला चिल्लाने लगता है, मोबाइल की सिक्योरिटी, भाई इतना बार बंद कैसे हो रहा है, वायरस तो नहीं आ गया है? सो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। अगर स्विच ऑफ ना करे तो नेटवर्क स्लो चल रहा है, और अगर स्विच ऑफ करे बार बार तो फिर जो है एंटीवायरस बोलता है कि स्विच ऑफ कैसे हो रहा है। ये प्रॉब्लम है। तो पहले हम लोग लेते हैं अटेंडेंस, ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। 7C, this is 7G, 7C। Yes, Ankit, speak out। सर हम्म, सर अगर हम लोग का मोबाइल में जैसे आप बोले वॉर्म्स रहता है तो उससे नेटवर्क प्रॉब्लम का बहुत ज्यादा होता है, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम लोग अपना मोबाइल को रेसेट या तो फॉर्मेट मार देंगे मतलब, तो वो हाँ। खत्म हो जाएगा। नाउ देख अंकित, इसमें
थोड़ा सा समझने वाली बात है कि मोबाइल अगर फॉर्मेट करोगे तो खत्म होना चाहिए, बट is your mobile rooted? Did you have given the permission to the softwares? What are the permissions you had given to the software app? ये सारे चीज पे डिपेंड करेगा, सिर्फ फॉर्मेट करने से ही नहीं होता है। देखना, कभी भी फॉर्मेट करता है तो जो कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है वो कभी नहीं जाता है ना, कंपनी का सॉफ्टवेयर कभी नहीं जाएगा। तो हो सकता है वो अपने आप को, वो वायरस या वो वर्म अपने आप को कंपनी का सॉफ्टवेयर बोल करके उसमें घुस गया हो, तो तुम कितना बार भी फॉर्मेट करोगे वो फिर से आ जाएगा। ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम हम लोग क्या करते हैं, बिना देखे समझे क्या कर देते हैं, सारे परमिशन, जो भी परमिशन मांगता है अलाउ 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 कर देते हैं। अब अलाउ कर देते तो बाहर बाद में तो झमेला भुगतना ही पड़ेगा। ओके, लेट मी टेक द अटेंडेंस। ओके, आयुषी वर्मा, देन अभिनव कुमार, देन वी हैव अंकित हो गया, आशुतोष कुमार, उसके बाद है मारेंगे एमडी अलशान, अभिनव कुमार, अंकित कुमार, आशुतोष कुमार, अथर्व भगत। अब है गौरव कुमार, अब है एमडी अलशान, अब है निशु राज के बाद है पलक। आज 2 पलक देख रहे हैं, पलक राज। उसके बाद है प्रिंस कुमार जी। आज प्रगति प्रेक्षी नहीं दिख रही है। प्रिंस कुमार जी, प्रिंस राज है नीचे। अब है प्रियांशी राज भाग जाती है रे, कहाँ गई थी? हम तो क्लास नहीं लिए, फिर भी तुम तो उससे पहले भी तुम भागी हुई है। प्रियांशी राज के बाद है राजलक्ष्मी, देन राजशी प्रिया, मतलब वैकेशन के बाद ये मान के चलो पहली बार ही है। राजशी प्रिया के बाद रोशन कुमार, रेनेसेंस स्टार, समृद्धि स्वरूप, सतीश कुमार। अब है सतीश कुमार के बाद शौर्य कुमार, शिवम है कि श्याम है? श्याम। एमडी अलशान का आज का अटेंडेंस किया, कहाँ गया थे? गया, करो बदमाशी आओ। श्याम के बाद सोनाक्षी। अब हो गया सूरज कुमार का नाम तो शायद लिखे थे। सूरज कुमार। अब लास्ट में है वंदना रंजन। तो एमडी अलशान का अटेंडेंस गायब करते हैं, तो बच गया 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, एक जन भाग गया। चलो कोई बात नहीं, एक जन चलता है। ओके, हाँ, किसी को कोई डाउट है, जल्दी जल्दी पूछ लो, बताते हैं फटाफट। यस समृद्धि, स्पीक आउट। सर आप जैसे बोले थे बैंकेस जो होता है, हम लोग अगर कोई भी तरह का पासवर्ड डालते हैं तो वो तुरंत देख के नहीं किसी नहीं, और को भेज देता है। सिर्फ बैंक के वेबसाइट पे जो आईडी पासवर्ड डालते हैं, सिर्फ बैंक के वेबसाइट पे, कोई भी नहीं। ठीक है, ओके, तो वो जो बैंक के वेबसाइट पे जो हम लोग पासवर्ड डालते हैं वो क्या इंटेंडेड भी किसी से सेंड, जैसे कोई दूसरा लोग को भी वो मतलब जो भेज सकता है, इंटेंड के करके रखा है कि अभी यहाँ से पैसा निकालना है? नहीं देखो, ऐसे कुछ नहीं है। वो क्या करता है, सारे पासवर्ड्स को वो पहले अपने आप में जमा करता है, अब उसके बाद वो देखता है कि कितने ट्रांजैक्शंस वो आदमी कर रहा है, ठीक है, वो ध्यान रखता है। और कुछ सॉफ्टवेयर्स वो बना के रखता है इस तरीके का कि वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है, तो उससे एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ भाई, इस आदमी के पास पैसा ज्यादा है, तो इसके साथ फ्रॉड किया जा सकता है, किया जा सकता है, होगा ही, नहीं बोल पॉसिबल है। आज के डेट में बैंक भी स्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि आरबीआई का जो ये आया, रूल्स एंड रेगुलेशंस आया कि अगर हम लोग 3 दिन के अंदर में बैंक में कंप्लेन करते हैं किसी भी तरह का फ्रॉड का, तो वो क्या करेगा, सारा पैसा वो बैंक तुमको वापस करने के लिए मजबूर है। तो बैंक आजकल क्या किया है, ठीक है, 10,000 तक आप कर सकते हो, आपके मतलब 9,999 तक आप कर सकते हो। जैसे ही 10,000 होगा तो क्या होगा, आपके फोन पे एक ओटीपी जाएगा, बिना ओटीपी का कुछ नहीं होगा। तो जब हम लोग ओटीपी डाल के ही ट्रांजैक्शन करेंगे तो फिर तो हम अपने मर्जी से ना कर रहे हैं। तो इसीलिए आज के डेट में बैंकिंग बहुत ज्यादा सिक्योर है। फिर भी क्या लोगों के साथ नहीं होता है चीटिंग? क्या लोगों के साथ नहीं हो रहा? हाँ हो रहा है। कैसे हो रहा है? वो सारे लोग हो सकता है उतने ज्यादा शिक्षित ना हो। क्या करता है, अरे आपके पास ओटीपी आया होगा, जल्दी दीजिए नहीं तो आपका कार्ड बंद हो जाएगा, अकाउंट बंद हो जाएगा, अकाउंट सीज हो जाएगा। तरह तरह का डर दिखाता है, लोभ दिखाता है लोगों को, और वो क्या करता है, अपना ओटीपी बता देता है। वही लोग के साथ फ्रॉड हो रहा है, हम लोग के साथ नहीं हो रहा है ना। तो दैट इज नॉट वेरी श्योर कि वो फ्रॉड करेगा ही, मगर हाँ, एक चांस तो रहता है ना कि मेरा इंफॉर्मेशन लीक हो गया, तो एक चांस तो है कि हो सकता है मेरे साथ ऐसे फ्रॉड। समझ गए? यस सर। ओके, एनीवन एल्स? वी डोंट हैव मच टाइम, लेस देन अ मिनट लेफ्ट, अपने आप ही बंद हो जाएगा। ओके, सो अगर किसी को, यस प्रिंस जल्दी बोल, बोलना है तो। बाय सर। अच्छा, तो मार खाएगा तुम बाय बोलने के लिए अरे बाय।